students, a warm welcome to all in a new session of Business Studies and Management. So I hope all are doing well, enjoying our videos, having no doubts, clear concept about business. And other topics, as you know, in our YouTube channel we are providing a lot of videos. So I request you all, please go through in detail all the classes, and if you have any complaint, then please suggest us. So students, today we are going to discuss a new concept in business. Apart from today's class, in the previous classes we have already discussed about the characteristics of business, obviously the meaning definition, characteristics of business, and then the most important objectives of business. What are the various objectives that a business possesses or aims to fulfill, achieve during its course, day-to-day business course. Okay, so as we have discussed that being a businessman, okay, so business is a separate unit, yes or no? That is a artificial person. So as like, see, whenever as you are now you are just a newcomer to the field of commerce, so you have no idea about commerce, so we are imposing or we are giving knowledge about commerce, like different topics of commerce, that is business, management, accounts, okay, and etc. So by that you can achieve more knowledge about the business, about the field of commerce. Then only after completing one stage up in your career, you able clear to open your business or to handle somebody else's business. Okay, so what is the basic requirement is here, that you must have proper knowledge. As I have said with you the feeling about if your father or your parents ask you to join his business or to cooperate them, so first of all you must have theoretical knowledge about the particular thing. Okay, along with that you must have some inherent qualities in the sense you must have proper knowledge, along with you must have some quality within you, so that you can easily undertake business or you can run that business. Okay, so those are called as the qualities, okay, the qualities of a person for engage themselves in a particular area. Okay, as like I said, in the human objective, okay, in the human objective, what we say that training is training, we provide training to the employee, then only we can engage them in operating different machines, yes or no? So why? Because if they have no knowledge about the particular machine, that how to start it, how to end, how to operate, how to give input, how to receive the output, what if some breakdown is arise, what if some maintenance is required, then that particular laborer must have proper knowledge about that machine, then only he can properly run his respective activity, that is to produce goods and services. If he has or she has no knowledge, then what happen? It may harm his life, or it may harm materials, or it may harm the machine. Okay, so proper knowledge is definitely required. Then along with that knowledge you start gaining some more skill. Okay, then you can achieve a maximum skill and you can do whatever new things, new technological changes or improvements or upgrades, anything you can handle. And by the time you start your career as a machine operator, okay, and after completing many years with that particular machine, you may be a expert of that particular machine. Okay, by the time you join the organization, okay, जैसे कि आप लोग अभी हो, है कि नहीं, आप लोग अभी एक स्टूडेंट हो, अभी आप सीख रहे हो, वैसे वो सीख रहा था, उसको हमने ट्रेनिंग दिया, है कि नहीं, बट कुछ टाइम के बाद जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करते जाओगे, +2 के बाद, +3 के बाद, यू मे बी ए क्लियर इफेक्टिव कॉमर्स
क्या कॉमर्स के आप एक जायंट हो जाओगे, है कि नहीं? डेफिनेटली आपको कोई भी अगर पूछेगा कॉमर्स के बारे में तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स, और यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ कॉर्पोरेट जॉब और एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन लाइकवाइज। ओके, ये सुनो। सो वैसे क्या होता है, एक एक स्टेज हम क्रॉस करने के बाद हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है और हम और मेन क्लियर एम मतलब और सारे जो कि है स्किल एक्सपीरियंस क्लियर हम गेन करते हैं, जिससे क्या होता है कि आप फ्रॉम ए फ्रेशर टू यू कैन बिकम ए एक्सपर्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो बिजनेस भी है ना, ये बिजनेस भी एक ऐसा है कि बिजनेस तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको हम हैंडल नहीं कर पाते, है कि नहीं? वो खुद से खुद हैंडल नहीं करता, उसको कोई एक हैंडल करना पड़ता है। तो कौन हैंडल करता है? बिजनेस को हैंडल करता है कौन? एक पर्सन, जिसको हम बोलते हैं बिजनेसमैन, है कि नहीं? बिजनेसमैन, द पर्सन who is responsible or who is conducting each and every activity towards the business or on behalf of the business। ठीक है, बिजनेस के लिए ही वो करता है, वो खुद के नाम से कुछ नहीं करता है, जो भी करता है बिजनेस के लिए ही करता है, बिजनेस के नाम से ही करता है। आप लोग देखे होंगे जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बिल आता है, क्लियर, सप्लायर को हम बिल देते हैं, कस्टमर्स को बिल देते हैं, कोई भी एक लीगल हम टैक्स वगैरह देते हैं, तो किसके नाम पे होता है? कुछ एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, किसके नाम पे होता है? ओनर के नाम पे थोड़ी ना होता है, होता है क्या? नहीं, वो किसके नाम पे होता है? बिजनेस के नाम पे ही होता है, बिकॉज बिजनेस इज द सोल ambassador of his own activity, where the businessman is the person who is controlling, who is managing, who is conducting his activities. Because of his artificial person, he can't, the business can't do everything by itself. That's why we engage some persons, that is the owner, who is responsible for engaging everything। Okay, clear? So being a businessman, अगर आप देखो आपके ऊपर कितना बड़ा responsibility है। बिजनेस में हमने देखा जो इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ इकोनॉमिक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स है, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है कि नहीं? जो कि हमें पूरा मतलब अपना भी देखना है, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए देखना है, हमारे सोसाइटी के बारे में सोचना है, हमारे कंट्री के बारे में सोचना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो ये सब बिजनेस के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जब भी एक गवर्नमेंट आपको एक परमिशन देता है बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, तो उसको भी आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये भी प्रॉफिट करेगा, कंटिन्यूसली चलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, कंट्री के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट इनपुट करेगा, है कि नहीं? प्रोड्यूस करेगा, जिससे हम सेल्फ रिलायंस बनेंगे। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बनेंगे, है कि नहीं? अपना जो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा, है कि नहीं? तो ये सारी चीजों को आपको हैंडल करना है, किसको? बिजनेस को। तो बिजनेस तो खुद नहीं कर सकता, इसलिए हमने किसको रखा है? बिजनेसमैन को, है कि नहीं? जो कि आप लोग, आपके पेरेंट्स जो करते हैं वो क्या है? वो है बिजनेस। हम इसको क्या बोलते हैं? वो करते हैं बिजनेस, काम करते हैं उसका, बट उनको हम क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। ठीक है ना? तो देखो इतना सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो व्हेन द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर, यू रिक्वायर्ड टू मस्ट बी ए कैपेबल पर्सन, मैच्योर, कैपेबल, नॉलेजेबल, क्लियर, एक्सपीरियंस्ड होना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि सोचो अगर आपको मैं एक बस चलाने के लिए बोलूं और नहीं तो 4 व्हीलर कार चलाने के लिए बोलूं, यू हैव नो नॉलेज, क्लियर? तो योर फादर, क्लियर, इज योर फादर आस्क यू टू ड्राइव द कार? Is it possible? No, because he know that you have no knowledge about that, you have no experience, you are totally not able to run that particular car or bus or whatever। Okay, but if you have some, clear, your older brother, okay, he has proper, means he get the training, license, everything experience। So your father can ask your elder brother to drive the car because he has the ability। So वही है कि नहीं? जब भी हम एक बिजनेस शुरू करते हैं, you must have some abilities, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटीज। जो वहां पे हमने पढ़ा पहले, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और द क्वालिटीज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या क्या क्वालिटी था? यह है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन हैं, ठीक है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन, ठीक है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन, ठीक है? ये एक नेचुरल पर्सन है, ठीक है? ये एक
नेचुरल पर्सन है और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है कि नहीं? ये एक नेचुरल पर्सन, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन. He has everything. He has everything except thinking. ये कुछ भी सोच नहीं सकता. क्लियर? इसके पास क्या है? He has nothing. He has nothing but have thinking ability. But have thinking ability. आ रहा है समझ में? अच्छे से समझो. इसके पास जो बिजनेस है ना हमारा, उसके पास सब कुछ है. सब कुछ है मतलब जो कि है रिसोर्सेस, इन्वेस्टर का सपोर्ट, कस्टमर का सपोर्ट, गवर्नमेंट का परमिशन, जगह मिल गया, बिल्डिंग मिल गया, एवरीथिंग. It has everything, all kind of resources, all kind of assets it required to run the business. इसके पास सब है. ठीक है? और ये क्या बोल रहा है कि मेरे जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं मैं सारे के सारे फुलफिल करूंगा. ऑब्जेक्टिव्स विल बी फुलफिल्ड. ये क्या बोल रहा है कि मैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल करूंगा, है कि नहीं? एज ए आर्टिफिशियल पर्सन. बट ये सोच नहीं सकता. इसके पास जो भी है ना, ये सब कुछ खर्चा नहीं कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है. ठीक है? बट ये जो हो गया ना नेचुरल पर्सन, इसका एम क्या है? एज ए बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आवर एम इज टू डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न. ठीक है? टू अर्न मनी. शायद कट रहा है. ओके वेट. ओके, टू डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न मनी. क्लियर? आ रहा है? टू डू इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न मनी. सो यहां पे देखो, जैसे आप लोग देखे होंगे कि हम जब कुछ इलेक्ट्रिक आइटम को क्या करते हैं, एक्सटेंशन करना है. सोचो कि आपका एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ पे है, मतलब जो सॉकेट जहां पे कि आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे है. ठीक है? और आपका जो 2 पिन प्लग है, ठीक है, वो यहाँ तक आया. ठीक है? तो देखो इतना डिस्टेंस आ गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस आ गया. सो इसको क्या करना है, वो इलेक्ट्रिशियन क्या बोलेगा कि चलो और एक मेल फीमेल एक्सटेंशन लाओ. ठीक है? जिससे कि हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं? इसका यूज क्या है? सॉकेट का काम क्या है? करंट सप्लाई करना. और इसका काम क्या है? जो प्रोडक्ट हमने एसोसिएट हुआ है उसको एक्टिवेट करना. तो इसके लिए ये इसके अंदर जाना पड़ेगा, बट ये अभी इतना डिस्टेंस में है. तो हम क्या करेंगे देखो, ये ना एक जो आता है, आप लोग देखे होंगे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में. ठीक है? एक रहता है मेल फीमेल टाइप, एक रहता है जिसमें कि क्या रहेगा, प्लग रहेगा इन. ठीक है? और दूसरा ओनली ब्लैंक रहेगा. तो इसके अंदर उसको आप इनपुट करोगे और फिर इतना जो डिस्टेंस है ये आप कवर अप कर सकते हो. मतलब इन द सोसाइटी आल्सो वी हेल्प ईच अदर. दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल बेनिफिट. ठीक है कि नहीं? मेरे पास जो है वो आपके पास नहीं है. ठीक है? मेरे पास जो है वो आपके पास नहीं है. तो मुझे जो चाहिए वो आपके पास है, आपको जो चाहिए वो मेरे पास है. तो हम क्या करते हैं? एक्सचेंज, हेल्प ईच अदर, म्यूचुअल हेल्प, म्यूचुअल बेनिफिट. बस यहाँ पे ना ये दोनों वही कर रहे हैं. इसके पास सब कुछ है बट ये कुछ कर नहीं सकता, हैंडल नहीं कर सकता. इसके पास कुछ भी नहीं है बट ये सब कुछ हैंडल कर सकता है. इसके पास थिंकिंग एबिलिटी है, नॉलेज है, एवरीथिंग है कि नहीं? तो ये लोग क्या करते हैं, लाइक बिजनेस जो होता है ये सोचता है कि चलो मैं इसको अंडरटेक करता हूं. ठीक है? लाइक मिल गया क्या, बिजनेस प्लस मैन. बिजनेस और ये मैन मिल गए तो बन गए का बिजनेसमैन. ठीक है? बिजनेसमैन. ओके, क्लियर? देखो अच्छे से. ठीक है ना? सो इसको हम बोलते हैं बिजनेसमैन. तो होता क्या है, बिजनेस के सारे चीजें अलग हैं और बिजनेसमैन के सारे चीजें अलग हैं. जो कि आप देखो बिजनेसमैन क्या करता है, इसको एवरीथिंग इनपुट देता है, अपना एफर्ट, अपना नॉलेज, अपना स्किल, एवरीथिंग
he give everything to its business. In return, business क्या करता है, उसको क्या देता है, lot of profit. क्योंकि बिजनेस का जो भी है वो क्या बोलता है, मेरा जो भी है, because of you are mine, you are handling me, you are running me, and because of you I am from there to now here, but छोटे से बड़ा हो गया, so I will give you everything. जैसे हमारा होता है ना पेरेंट्स और चिल्ड्रंस का जैसा रहता है रिलेशन, है कि नहीं. चिल्ड्रंस के लिए पेरेंट्स एवरीथिंग करते हैं, फिर जब चिल्ड्रन बड़ा होता है वो थोड़ी ना बोलता है कि आप लोग चले जाओ, मुझे आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलता है नहीं, कि आपने मेरे लिए जो भी किया है, that is I am indebted to you, so I will definitely do something for you. So whatever I have, that is everything belongs to you, and that is you have also rights over those things. So बिजनेस और बिजनेसमैन का रिलेशन वही रहता है. ये होता है पेरेंट्स और ये होता है चिल्ड्रन. इसके पास सारे हैं नॉलेज, बट ये खुद से खुद नहीं कर सकता, इनको इनके लिए सपोर्ट चाहिए. जैसे स्टूडेंट एंड टीचर, बस ये इन दोनों का रिलेशन भी वैसा होता है, बट दो जन अलग अलग होते हैं, दो जन सेम नहीं होते हैं. ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में. तो हमने देखा कि बिजनेस का क्वालिटीज क्या है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, अभी हम देखेंगे एज ए बिजनेसमैन. ठीक है, आपको जैसे मैंने बोला कि आपके पापा आपको बोलेंगे गाड़ी चलाओ, अगर आपके पास नॉलेज है तो बिजनेस भी आपको अप्रोच करेगा कि आप मुझे हैंडल करो. कब करेगा, जब उसको लगेगा कि हाँ इसके पास ये क्वालिटीज हैं, इसके पास ये एबिलिटी है, ये मुझे हैंडल कर सकता है, ये मुझे ग्रो कर सकता है. क्योंकि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है ना, सारे के सारे आपको अचीव करना है. तो कैसे अचीव करोगे, बाय गोइंग स्लोली. तो कैसे जाओगे, अगर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, क्वालिटीज है, तो आप धीरे धीरे करते करते आगे जाओगे, कंसिस्टेंटली मार्केट में रहोगे. क्लियर, जैसे हम बोलते हैं सर्वाइवल और कंटिन्यू बिजनेस करोगे, प्रॉफिट अर्न करोगे, ग्रोथ होगा, एक्सपांशन होगा, डाइवर्सिफिकेशन, उसके साथ साथ आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करोगे, नेशन को सेटिस्फाई करोगे, सोसाइटी को सेटिस्फाई करोगे, तभी आप ग्रो करोगे. और आप जितने भी एफर्ट दे उसका इन रिटर्न गिफ्ट आपको बिजनेस देगा एज ए प्रॉफिट. Okay, clear? So today in this class we are going to discuss about what are the qualities that a businessman must have to run a business or for being a successful business. Successful businessman मतलब जो एक एक पर्सन अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकता है. सक्सेसफुल हम कब बोलेंगे, इफ यू कैन अचीव ऑल योर ऑब्जेक्टिव्स, if you can achieve all your objectives with your limited resources, time, effort, then only we can say you are successful. But if you cannot achieve your objective, if you cannot achieve profit, if you cannot give employment to others, if you cannot offer good quality product to the customers, if you cannot provide tax to government, if you cannot being a self-reliant, then उसका मतलब क्या है, यू हैव नॉट फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव. नॉट मतलब यू आर ए फेलियर, है कि नहीं, यू आर ए फेलियर. दैट मीन्स यू आर नॉट ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यू आर कॉल्ड एज ए फेलियर बिजनेसमैन. जिसको कि अपने बिजनेस करियर में फेलियर मिला, वो कुछ भी नहीं कर पाया. मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये बिजनेस आपको अपने लिए काम करने के लिए बोल रहा है, मतलब इसका जो भी ऑब्जेक्टिव है वही आपका ऑब्जेक्टिव भी है, आपको वही सब अचीव करना है. अगर आप अचीव कर पाए तो यू आर कॉल्ड एज ए सक्सेसफुल पर्सन. इफ यू कैन नॉट अचीव देन यू आर कॉल्ड एज ए फेलियर पर्सन. ओके, क्लियर, आ गया समझ में बिजनेसमैन के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द क्वालिटीज दैट ए बिजनेसमैन मस्ट पोजेस फॉर being called as a successful businessman. Okay, so let us discuss what are the qualities. So students, here we have all the qualities that a businessman must possess for being a successful businessman. So please have a look over the characteristics or the qualities of a successful businessman. Please note it down. See, all the qualities are
available with a human being, definitely. Okay, all the qualities are available with a human being, but somehow the quantity means कौन सा पार्ट कितना है, किसके पास ज्यादा होता है, किसके पास कम होता है. कोई कोई मतलब ये जो है, likewise we can see we have 20 qualities. Out of these 20 qualities, I may have 10 qualities in higher level or 10 qualities lower level, or I may have 3-4 qualities not present with me. So there are kind of persons जिन लोगों के पास ये जो सारे के सारे क्वालिटी इनहेरेंटली होते हैं, उनके पास होते हैं, नहीं होते हैं. अगर है तो उसको एनहांस करना है, अगर नहीं है तो हमको उस चीजों को जानना है, सीखना है, अचीव करना है कि नहीं. देन ओनली वी कैन बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट वन बाय वन. ठीक है, कि क्या क्या क्वालिटीज हैं जो कि एक पर्सन के पास अगर है तो हम उसको बोलेंगे कि यस, ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है. ठीक है, क्लियर. सो क्या है, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पापा के पास एक बिजनेस है, वो एक बिजनेस रन करते हैं, तो आप सोचोगे कि पापा आपके पास कितना नॉलेज है आपके बिजनेस का. यस और नो? यस. कि इफ यू आर कंसर्न, इफ यू आर डूइंग ए पर्टिकुलर बिजनेस, क्योंकि हमें पता है बिजनेस मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं. बिजनेस का सिंपल मीनिंग होता है कुछ खरीदो बेचो, प्रोड्यूस करो बेचो. तो क्या खरीद के बेचना है, क्या प्रोड्यूस करके बेचना है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू, योर एफर्ट, योर मीन्स एवरीथिंग दैट इज डिपेंड अपॉन यू, your ability, your skill, your knowledge, your technical skill, your suitability. ठीक है, your availability of that particular product, है कि नहीं. और आप कौन से जगह पे रहते हो, आप कौन से मार्केट में रहते हो, वो मार्केट में क्या क्या चीजों का डिमांड है, बस वो आप वही कर सकते हो, है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंक टू स्टार्ट आप स्टार्ट करोगे कि मुझे सेल करना है एप्पल, कहाँ पे, कि जम्मू कश्मीर में. So that is a very foolish decision, because जम्मू कश्मीर से तो एप्पल आता है, आप वहां पे जाके क्या बेचोगे. वहां पे तो मतलब हर किसी के घर के बगीचे में, यहाँ पे हमारे जैसे क्या, जैसे जो फूल के जो होते हैं बाड़ बगीचे, वैसे वहां पे हर किसी के बगीचे में एक पेड़ रहेगा क्या, एप्पल का. तो आप वहां पे क्या बेचोगे. तो दिस इज ए फुल क्लियर डिसीजन, है कि नहीं. तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो. अब बिजनेस मतलब आप पेन बेचो, पेंसिल बेचो, स्टेशनरी आइटम बेचो, और नहीं तो खाने का चीज बेचो, कि नहीं तो कपड़े बेचो, और नहीं तो कुछ भी, एनीथिंग यू कैन सेल. दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू, योर अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज एंड योर अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग. बट यू मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. इन डेप्थ मतलब पूरा का पूरा बेहतरीन, जो कि अलग किसी के पास नहीं है, जो लोग बाहर से देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव नॉलेज अबाउट टेक्सटाइल, कपड़ों के बारे में आपको नॉलेज है, खाने के बारे में आपको नॉलेज है, वेजिटेबल्स के बारे में आपको नॉलेज है, यू हैव नॉलेज, बट यू डोंट हैव इन डेप्थ नॉलेज. इन डेप्थ नॉलेज किसके पास है, जो वो उगाता है, जो वो बेचता है, उनके पास इन डेप्थ नॉलेज है. इन डेप्थ मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट. ठीक है, अगर ले लो ये हो गया एक 5 फिंगर्स वी हैव, आपके पास ये हो गया ना एक, ये क्या है, एक इसको हम क्या बोलते हैं, सब मिल गए पांचों. ठीक है, इसको हम बोलेंगे दिस इज ए क्या, जिसको हम बोलते हैं क्या, पंच, और जिसको हम बोलते हैं एक मुट्ठी बन गया, है कि नहीं. ये आपको मतलब एज ए लेमैन, एज ए नॉर्मल बीइंग, हमें पता है कहाँ ये एक मुट्ठी है, बट ये मुट्ठी कैसे बना, ये फिंगर का क्वालिटी क्या है, ये फिंगर का, ये किसको पता है, ये इंडिविजुअल पर्सन को ही पता है कि नहीं. और ले लो कि अगर आपको एक कपड़ा दिखता है कि कपड़ा हाँ क्वालिटी वगैरह सब अच्छा है, अच्छा दिख रहा है, बट उसके बारे में और डिटेल, वो कपड़ा बनता कैसा है, कलर कैसे करते हैं, वो स्टिच मतलब कॉटन मटेरियल है कि सिंथेटिक है कि वुलन है, वो बना कैसे, कहाँ पे बना, वहाँ पे रॉ मटेरियल कैसा था, किसने बनाया, उसका क्वालिटी क्या था, ऐसा ना. इन डेप्थ, इसको हम बोलते हैं इन डेप्थ नॉलेज. ओके, सो टू स्टार्ट ए बिजनेस perfectly, for being called as a successful businessman, you must have in-depth knowledge of your business. In-depth knowledge मतलब, in-depth knowledge में हम क्या क्या देखेंगे कि in-depth knowledge मतलब what is your exact objective, what is your business upon, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या बेच रहे हो, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है,
कहाँ से आपको बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं, उसको कैसे प्रोडक्शन करना है, करने के बाद उसको कैसे डिजाइन करना है, उसको प्राइसिंग कैसे करना है, अपने जो मनी, बिकॉज बिजनेस मतलब बहुत सारे मनी इन्वॉल्व होते हैं, वो मनी को कैसे आपको हैंडल करना है, वो प्रोडक्ट को कैसे अच्छे से बेचना है, लोगों को कैसे अप्रोच करना है कि नहीं, और आपके प्रोडक्ट को कैसे डे बाय डे क्वालिटेटिव बनाना है, ये सब चीजों को नाम बोलते हैं इन डेप्थ नॉलेज ऑफ बिजनेस। ये जो होता है ना, बिजनेस में बहुत सारे फील्ड होते हैं, एक बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक काम करने के बाद आपको पता चलेगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन वाले होते हैं, मार्केटिंग वाले होते हैं, सेल्स वाले होते हैं, प्रमोशन वाले होते हैं, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले होते हैं, ठीक है। ये जो सारे के बारे में आपको आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, लोग आपको चीट करेंगे, है कि नहीं। तो क्या होगा, आपने इतना एफर्ट दिया, जितना आपको बेनिफिट मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? जो मिलना चाहिए था वो आपको दूसरे लोगों ने चीट कर लिया। मतलब बाय चीटिंग, बाय फ्रॉडली, बाय फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस दे गेट, ओके, दे स्नैच द एबिलिटी और द बेनिफिट व्हाट यू हैव टू अचीव। आप जो अचीव करना चाहते थे, आप जो अचीव कर सकते थे, वो लोगों ने उसको स्नैच कर लिया, छीन लिया बाय चीटिंग, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग यू मस्ट हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ योर बिजनेस। अगर आप देखोगे कोई भी अगर एक बिजनेस कर रहा है ना, आप उसके बारे में आप उसको कुछ भी क्वेश्चन पूछो, वो डेफिनेटली जवाब दे देगा, ओके। आप बोलोगे कि सर ये तो इन डेप्थ नॉलेज के बारे में अभी तो एजुकेशन आ गया, हम लोग पढ़ रहे हैं, बट प्रीवियसली जो लोग बिजनेस करते थे उनके पास तो होता था। यस, हम नॉलेज बहुत तरीके से गेन कर सकते हैं। वी कैन गेट नॉलेज। हम नॉलेज कैसे गेन करते हैं? हम अपने दिमाग में आइडिया और नॉलेज कैसे आता है, कैसे? बाय रीडिंग बुक्स, बाय टीचिंग। हम मतलब अपने टीचर्स को के ऊपर डिपेंड होते हैं। टीचर्स हमें जो सिखाते हैं उससे हमें पता चलता है, ठीक है कि नहीं। और बाय रीडिंग बुक्स, मटेरियल्स अवेलेबल इन द मार्केट जो अवेलेबल है, उसके साथ साथ और भी है समथिंग वी आल्सो गेन नॉलेज बाय ऑब्जर्विंग। कुछ चीजों को हम देख के सीखते हैं, है कि नहीं। जैसे आपके घर पे एक अगर छोटा बच्चा है तो क्या करता है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता है ना, वो सब कुछ समझने लगता है कि ये कौन है, वो कौन है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। अगर जैसे दौड़ते हो वो भी आपको कॉपी करेगा, है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्विंग। वो लोग तो जो बच्चे होते हैं जो मतलब लैंग्वेज सीख जाते हैं, किसको क्या बुलाना है, कैसे करना है, सब सीख जाते हैं। वो थोड़ी ना पढ़ाई करते हैं, वो कैसे? बाय ऑब्जर्विंग। वो ऑब्जर्व करके सीख लेते हैं, ठीक है। और कुछ होता है इनहेरेंट, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, जिसको हम बोलते हैं जीन। अपने जो डीएनए में होता है वो अपने में है। दैट मींस हम करें चाहे ना चाहे वो डेफिनेटली बाहर आ जाएगा, वो हम करने लगेंगे, ठीक है। वो एक क्वालिटी होता है, ठीक है। उसके साथ भी हम नॉलेज गेन करते हैं। और क्या होता है? और आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। ऐसा कुछ होता है जो कि हमने कहां से पढ़ा नहीं, देखा नहीं, बट हमने खुद किया। वो करते 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 आपको वो चीज का नॉलेज आ गया, है कि नहीं। क्लियर? तो वी कैन अचीव नॉलेज बाय वेरियस वे। बाय एक्वायरिंग नॉलेज, वी कैन एक्वायर नॉलेज बाय बुक्स फ्रॉम आवर टीचर्स, और बाय ऑब्जर्विंग, और बाय आवर ओन एक्सपीरियंस। तो उन लोग जो होते थे जो प्रीवियसली, वो लोग अपना एक्सपीरियंस खुद करते 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 उनको नॉलेज आ गया। बट सब्जेक्ट टू दे हैव इन डेप्थ नॉलेज। उनके पास भी इन डेप्थ नॉलेज था। और अभी भी लोगों के पास जो भी अपना बिजनेस करता है वो बिजनेस को रिलेटेड उनके पास इन डेप्थ नॉलेज है। और आगे भी ये चलता रहेगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका इन डेप्थ नॉलेज आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, ओके। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए पर्सन फॉर बीइंग ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ओके। क्लियर? आ गया समझ में? और बुक्स में आपको और भी बहुत सारे मिलेंगे। मतलब मैंने आपको समझा दिया, और उसको प्रेजेंट कैसे करना है डिक्टेट में नहीं करूंगा। आपके पास मटेरियल है, आप लोगों को देख के मतलब माइंड को और थोड़ा डेवलप कीजिए, ओके। देन सेकेंड वन इज इनिशिएटिव एंड इनोवेटिव। ये दोनों का मतलब क्या है? इनिशिएटिव का मतलब देखो ये है कि सोचो कि एक ग्रुप है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे एक झुंड बना के चलते हैं। झुंड मतलब देखो कि आप लोग कॉमनली देखते होंगे जो बकरी और मेंढे का जो झुंड होता है,
वो लोग कैसे होता है कि इन लोगों को ना इनिशिएटिव, अगर आप एक जन ना देखो एक अगर मतलब पूरा ग्रुप अगर देखो एक जगह पे रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे तो वो सारे ना एक दूसरे को कॉपी करेंगे। जब एक चलना शुरू करेगा उसके पीछे पीछे और सारे चलेंगे, ठीक है। अगर दूसरा आप अगर और भी देखो, जो बुफालोस को देखो, ठीक है, बुफालो वो भी क्या करते हैं, सोचो वो एक लाइन में जा रहे हैं, सब ना एक ही को फॉलो करते हैं, एक चला उसके पीछे सब फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर देखो वो ऐसा जा रहा होगा, वो अगर ऐसा थोड़ा टर्न करके ये साइड से जाएगा, वो पहले राइट से जा रहा था अभी थोड़ा लेफ्ट से चला गया ना, उसके पीछे जो होता है ना वो भी लेफ्ट में ही जाएंगे। इसका मतलब क्या है, दैट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब शुरू करना है, यू मस्ट स्टार्ट, आपको शुरू करना है। जो मैंने बोला कि रिलेशन आपको शुरू करना है, बिजनेस के पास सब कुछ है, आप भी अपना इनिशिएटिव लेना है, डिसीजन लेना है, कॉरेज दिखाना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये बिजनेस करूंगा। आप जब तक शुरू नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी अचीव नहीं होगा। शुरू करो, then only you can achieve everything one by one. That is called initiative. Means for a business, successful businessman, you must have initiative knowledge, that you have initiative quality कि कुछ भी अगर हो तो आपको सबसे पहले कोई सपोर्ट करे ना करे, कोई मिले ना मिले, आप अपने कॉरेज के हिसाब से आपको क्या करना है, इनिशिएटिव करना है, शुरू करना है काम को। क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करोगे आप एक अचीवमेंट मतलब आप एक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचोगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिक्वायर्ड इज इनिशिएटिव, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करना है काम को। जैसे बिजनेसमैन में हम बोलते हैं कि बिजनेस को आपको सबसे पहले शुरू करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आप ही को करना है। क्योंकि सबसे पहले आप अकेले ही होते हो, फिर उसके बाद आपका टीम डेवलप होता है, आपके पास और मेंबर आते हैं, लेबरर्स आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, वो सब लोग आपके पीछे होके आपको सपोर्ट करके आगे जाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मींस अनलेस अंटिल यू स्टार्ट द बिजनेस यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग एंड नोबडी कैन डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। जैसे ले लो कि क्लास में अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो सारे के सारे बच्चे को आता भी होगा नहीं आता होगा, जिसको आता भी होता ना वो लोग नहीं बोलते, मतलब ऐसे ही बैठे होंगे। मैं बोलता हूं कि किसको आता है, रेज योर हैंड, कोई नहीं, ऐसा ही, ठीक है, नो इनिशिएटिव, क्लियर। बट व्हेन वन स्टार्ट द इनिशिएटिव, अगर एक कोई उठा ले तो उसको देख के सारे के सारे एक दन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा पूरा का पूरा क्लास उठाएगा हाथ, हाँ सर मुझे भी आता है। बट शुरू कोई भी करना नहीं चाहता है, दैट इज ए क्वालिटी, दैट क्वालिटी यू मस्ट हैव। कि आप हम लोग को क्या लगता है कि मैं अगर उठाऊंगा, सर अगर मुझे पहले पूछ लिए, अगर मेरा आंसर गलत हो गया तो डरना नहीं है, क्योंकि फ्यूचर इज डेफिनेटली अनसर्टेन, क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या ना मिलेगा, वी डोंट नो, बट वी मस्ट ट्राई, वी मस्ट गिव आवर 100%। आपको लग रहा है कि मुझे ये मालूम है, मुझे ये आता है, मैं ये कर सकता हूं, सो यू शो योर इनिशिएटिव। देन सर आपको पूछेंगे, सही हो गया तो प्राउड मिला, नहीं हुआ तो सर थोड़ी ना आपको मारेंगे, और नहीं तो आपको लगेगा कि चलो मेरा इज्जत चला गया, नहीं मैं इंसल्ट हो गया क्लास में। सुनो, ये जो फील्ड में ना आपको इंसल्ट, यू डोंट हैव टू फील इंसल्टेड, बिकॉज इंसल्ट का कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी में। ये याद रखो, सोसाइटी में इंसल्ट का कोई वैल्यू नहीं है। आज आपको एक जन इंसल्ट करेगा, है कि नहीं, अगर आप डर के रह गए, सहम के रह गए, नहीं वो दोबारा नहीं किया तो वो आपको नहीं मोटिवेट करेगा, आप रह गए, आप दब गए, ठीक है, और आपके पास जो थे वो चले गए। अगर आप इंसल्ट से बिना डरे आप काम करोगे, एक बार किए फेलियर हो गया, लोग हंसे, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे क्या जाता है, वो लोग हंसने दो उन लोग को, और ये सोचो कि चलो मेरे वजह से कोई किसी को एक खुशी मिले, वो हंस रहा है, ठीक है। देन यू शुड स्टार्ट योर सेकंड स्टेज। एक बार फेल हो गया, नो डाउट, सेकंड बार ट्राई करो, सेकंड भी फेल, थर्ड बार, क्योंकि ईच एंड एवरी सी फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ योर जर्नी, फेलियर इज द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी। क्योंकि फेलियर से आप बहुत कुछ सीखते हो कि मैं इस बार फेल क्यों हुआ, क्या गलत हो गया मेरे से, है कि नहीं, उससे आपको पता लगा कि हाँ ये गलत हुआ, नेक्स्ट टाइम आप सोचोगे कि नहीं मैं वो नहीं करूंगा। तो सोचो कि आपके पास अगर 10 गलतियां थे, पहली बार आपने 5 जान लिए, हो गया 5, अब कितने बचे 5, देन नेक्स्ट टाइम आप 3 सॉल्व कर लिए, आपको पता है हाँ ये भी है, 3 गया, थर्ड टाइम और जो 2 था वो भी गया, फोर्थ टाइम क्या होगा,
यू हैव नो डिफिकल्टी, यू हैव नो फेलियर, है कि नहीं, क्योंकि आपके पास और कुछ भी गलती नहीं है। इन द फोर्थ टाइम यू विल डेफिनेटली अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। आप डेफिनेटली जो भी आपका चॉइस है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, वो आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो फेलियर, ये जो इज्जत चला गया, लोग मेरे पे हंसेंगे, ये सब चीजों को, साइनेस, ठीक है, ये सब चीजों को छोड़ दो। अगर आपको पढ़ाई करना है, अच्छा बनना है, कैरियर सेट करना है, आगे बढ़ना है, तो ये सारे चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि लोग हंसने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, बट मोटिवेट आपको कोई नहीं करेगा। एक बार अगर आप फेल हो गए तो आपको कोई बोलता है, जो आपके ऊपर हंसा था वो पिछले, मतलब उसके बाद आके थोड़ी ना बोलता है कि दूसरी बार ट्राई करो हो जाएगा, बोलता है? नहीं बोलेगा कभी भी। ठीक है, जो आपके अपने हैं, जो आपके लिए सोचते हैं, वही बोलेंगे कि कोई नहीं बेटा, चलो एक बार हो गया, दूसरी बार ट्राई करो हो जाएगा, क्योंकि उन लोग को पता है कि फेलियर इज नॉट द एंड, फेलियर इज द बिगिनिंग ऑफ योर सक्सेस। ठीक है, सो दैट इज इनिशिएटिव। बीइंग ए बिजनेसमैन यू मस्ट हैव द क्वालिटी टू इनिशिएट द एक्टिविटीज, टू इनिशिएट समथिंग। जब तक आप इनिशिएट नहीं करोगे, कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं आएगा। आप इनिशिएट करोगे, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज इनोवेटिव। ये हमें पता है, इनोवेटिव, कुछ नया करना है, कुछ नया। इनोवेटिव मीन्स टू डू समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव। सोचो कि आपके एरिया में एक, मतलब 10 जन एक टाइप का बिजनेस करते हैं, एक टाइप, मतलब सोचो कि फूड आइटम बेच रहे हैं, फूड आइटम। आप भी सोचो कि मैं भी फूड बेचूंगा, इसमें क्या नया है? क्योंकि 10 जन ऑलरेडी मार्केट में फैले हुए हैं, कस्टमर्स उनके ऊपर डिपेंड है। आप कुछ ऐसा करो जो कि पहली बार है, जो कि दैट इज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली। आपको एफर्ट भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मोर कंपटीशन मोर एफर्ट, नो कंपटीशन मींस लेस एफर्ट। अब थोड़े एफर्ट में भी आपको डेफिनेटली मिलेगा सक्सेस। सो यू मस्ट हैव इनोवेटिव। एंड आज की दुनिया में आपको पता है, कस्टमर्स आर बी फंड ऑफ मोर इनिशिएटिव, मोर क्रिएटिव थिंग्स, मोर न्यू थिंग्स। टेक्नोलॉजी को ले लो, स्टाइल को ले लो, डिजाइन को ले लो, टेस्ट को ले लो। आज एक है, कल दूसरा, परसों तीसरा, उसके दिन तीसरा, मतलब एक कांस्टेंट नहीं रहता है। तो यू मस्ट हैव इनोवेटिव स्किल। इफ यू हैव नो इनोवेटिव स्किल, अगर आप कुछ नया नहीं सोच सकते, अगर आप वो पुराने तरीके से ही चलोगे, तो आप एक टाइम आएगा जब आप डाउनफॉल हो जाओगे, मार्केट से आउट हो जाओगे, क्योंकि कस्टमर्स आपको नहीं पूछेंगे, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। अगर आपके पास कस्टमर्स नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस नहीं है। ओके, क्लियर? दैट इज अनदर क्वालिटी फॉर बीइंग ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। क्लियर? नेक्स्ट, मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी। मेंटल मतलब मेंटली यू मस्ट हैव साउंड एबिलिटी, एबल होना चाहिए। कि मेंटल एबिलिटी मतलब यू मस्ट हैव नॉलेज। नॉलेज तो हो गया, नॉलेज के साथ आपको मतलब दुनियादारी पता हो। दुनियादारी मतलब सोशल थिंग्स, ठीक है, मतलब किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किसको कैसे ट्रीट करना है, कौन सा डिसीजन कैसे लेना है, कौन से चीज को ज्यादा फोकस में लेना है, कौन से चीज को ज्यादा फोकस में नहीं लेना है, ठीक है कि नहीं, मतलब ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, ठीक है। आपका माइंड, आप माइंड क्रिएटिव वे में सोच सको, ठीक है। मींस मेंटल एबिलिटी आ रहा है ना समझ में, मतलब यू मेंटली यू मस्ट बी एबल कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, then only you can do, otherwise you cannot do. That is called mental ability. And you must have the skill to take decision, logical decision, social decision. और आपके फैमिली को भी टाइम देना है, बिजनेस को भी टाइम देना है, कस्टमर्स को टाइम देना है, सप्लायर को टाइम देना है, मार्केट के बारे में जानना है, कॉम्पिटिटर के बारे में जानना है। सो ये सारे चीजों को हैंडल करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप मेंटली वीक हो गए तो एक दो साल के बाद जब एफर्ट बढ़ जाएगा, आपको लगेगा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो गया आपका, ठीक है, वो होना चाहिए। और फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल ह्यूमंस फिजिकली मस्ट लुक स्ट्रांग, है कि नहीं, फिजिकली स्ट्रांग लुक देखना चाहिए। फिजिकली भी आप स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग मतलब आपको कोई बीमारी ना हो, ठीक है, आपको कोई भी टाइप का मतलब बॉडी पेन और नहीं तो ऐक रहे, आपको कहीं जाने के लिए बोलेगे तो नहीं मुझे बॉडी पेन में नहीं जा सकता। आपको अगर बोलेगा कि कॉन्फ्रेंस करो कि 1 घंटा बात करना, आप बोलेगे नहीं मैं 1 घंटा बात नहीं कर सकता, मुझे फिजिकल प्रॉब्लम है। अगर ये चीजें रहेंगे ना तो आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि बिजनेस में देखो स्टूडेंट्स, 2 चीज डेफिनेटली होता है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। रिस्क जिसको बोलते हैं, रिस्क है अपॉर्चुनिटी है। अगर आप रिस्क को हैंडल कर लिए दैट इज अपॉर्चुनिटी, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिए तो दैट इज ए रिस्क फॉर यू।
ठीक है, रिस्क अपॉर्चुनिटी, इफ यू हैंडल रिस्क दैट इज अपॉर्चुनिटी, इफ यू फेल इन अपॉर्चुनिटी, इफ यू कैन नॉट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी दैट इज ए रिस्क फॉर यू। अगर आपके पास एक कस्टमर आया, अगर आप उसको अपना चीज ना बेच पाए तो दैट इज ए रिस्क फॉर यू, क्योंकि वो चला गया आपके कॉम्पिटिटर के पास। आपके पास आया था अपॉर्चुनिटी, आपने ग्रैब नहीं कर पाया, रिस्क। क्यों, क्या हुआ रिस्क? आपको मतलब सेल नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं? और दूसरा, आपकी दुकान में छोड़ के जो दूसरे दुकान में गया, सोचो उसके लिए वो रिस्क था, है कि नहीं? रिस्क क्या था? उसको मतलब उसके पास नहीं आ रहा था कोई भी, अभी वो आया आपके पास से, वो जो उसके पास गया, दैट इज अपॉर्चुनिटी, उसने ग्रैब किया। ग्रैब के मतलब नो रिस्क। ओके, सो यू मस्ट हैव फिजिकली स्ट्रांग। ओके, मतलब फिजिकली आपको फिट रखना है, जैसे जॉगिंग वॉगिंग करना है कि नहीं, एक्सरसाइज करना है, मतलब अच्छा डाइट खाना पीने के ऊपर आपको है मतलब ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पैसा आ गया खा पी के पूरा बॉडी वॉडी फुला लो, है कि नहीं, पूरा आराम से बैठे रहो। ऐसा आप करोगे तो बैठोगे तो आपके पीछे सारे के सारे लेके चले जाएंगे, आपको ठग लेंगे, चीट कर लेंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं और क्लेवरली, वेरी क्लेवरली दे कैन चीट अपॉन यू। सो आपको मेंटल के साथ साथ फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग एबल होना चाहिए। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, टीम बिल्डर और लीडर, जिसका बोलते हैं लीडर। यू आर द लीडर, क्योंकि बिजनेस पहले शुरू कौन करता है? ए सिंगल मैन। जैसे मैंने बोला बिजनेसमैन एसोसिएट हुआ, स्टार्ट हुआ, धीरे 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 वो बढ़ता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसके साथ और लोग एसोसिएट होते हैं, एम्प्लॉइज आते हैं, मैनेजमेंट टीम आता है, आप बड़े होते हो और टीम आता है और बट हु इज द हेड? यू आर द हेड, यू आर द टीम बिल्डर। टीम, आपका जो टीम बना, टीम मतलब आपका जो ग्रुप बना, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन, पहले एक जन था, फिर 10, फिर 20, फिर 100, 500, 1000, ये टीम, इसको किसने बिल्ड किया? बिल्ड मतलब बनाया किसने? आपने बनाया। जैसे मैंने बोला इनिशिएटिव, यू मस्ट प्रोवाइड, give your extra effort, your everything to team, to build your team, क्योंकि टीम के साथ काम करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, अकेला काम करोगे बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट इज ए सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आप अकेले हमेशा अगर सोचोगे कि मैं अकेले सब कर लूंगा तो ले लो, सोल ट्रेडर, उसका कॉन्सेंट के हिसाब से उसको प्रॉफिट होता है, बट बड़ा कंपनी उसके कॉन्सेंट के हिसाब से उसको प्रॉफिट होता है। सोल ट्रेडर जो जितना काम करता है उसको इतना प्रॉफिट मिलता है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वो भी उतना काम करता है बट उसका इतना प्रॉफिट मिलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द टीम, क्योंकि टीम के सारे लोग अगर मिलकर काम करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है, अकेले करोगे कम बेनिफिट मिलेगा। सो यू मस्ट एम एंड यू हैव क्वालिटी टू टीम बिल्ड योर टीम। आपके पास अच्छा क्वालिटी होना चाहिए कि आप कैसे अपना एक अच्छा टीम बना पाओ, अच्छे लोगों को लेके, स्पेसिफाइड, क्वालिफाइड, प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस्ड, गुड पर्सन, ठीक है, ये सारे लोगों को लेके आपको क्या करना है? अपना टीम बिल्ड करना है। एंड यू आर द लीडर ऑफ योर टीम, यू आर द लीडर। लीडर मतलब बीइंग ए लीडर, लीडरशिप एक क्वालिटी है। क्या है लीडरशिप? लीडरशिप मींस इज ए क्वालिटी और ए प्रोसेस बाय व्हिच यू इंड्यूस अदर्स टू वर्क फॉर यू बाय देयर ओन विलिंग। मतलब आप ऐसा करोगे कि वो लोग सोचेंगे कि हाँ मैं इसके लिए काम करूंगा, इससे बेनिफिट किसको मिलेगा? नो डाउट आपको मिलेगा, रिटर्न उनको भी मिलेगा। मतलब आप उनको ऐसा इंड्यूस करोगे, इज ए प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पर्सन, द अदर पर्सन, सो दैट they can what willing, soul willing, enthusiastically they can agree to work upon you, to work for you. That is the leadership quality. ठीक है, तो आपके पास लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, तो होगा तो ही आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हो। ओके, क्लियर? देन रिस्क टेकर, ये तो आपको पता है कि बिजनेस है मतलब रिस्क है, बिजनेस के साथ ही रिस्क है, तो बिजनेस के साथ जो है वो आपके साथ भी है, तो रिस्क है, तो यू हैव मस्ट हैव रिस्क टेकर। आपके पास रिस्क टेकिंग, रिस्क लेने का एबिलिटी होना चाहिए। बीइंग ए बिजनेसमैन यू मस्ट स्टार्ट ए एक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम, देयर इज ए रिस्क, बट आपको इतना गट्स होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ होना चाहिए कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर कुछ इधर उधर हो गया तो रिस्क में हैंडल कर सकता हूँ, कितना होना चाहिए। यू मस्ट बी ए रिस्क टेकर। अगर आप रिस्क से भागोगे, रिस्क आपके पीछे भागेगा, आप रिस्क के पीछे भागोगे, रिस्क आपसे पीछे पीछे जाएगा। ठीक है, सो यू मस्ट हैव ए रिस्क टेकर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, फॉरसाइट एंड कमिटेड। यस, ये चाहिए फॉरसाइट।
फॉरसाइट मतलब आगे के बारे में सोचना है। आज आप एक काम कर रहे हो, आपको सोचना है कि कल मैं क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा। जैसे कि हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्लान, पूरा का पूरा प्लान है कि ये साल ये, नेक्स्ट ईयर ये, नेक्स्ट ईयर ये, नेक्स्ट ईयर ये, नेक्स्ट ईयर ये, पूरा फॉरसाइट कि मैं आगे क्या करूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोलता हूं कि बिजनेस में एनवायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपके कॉम्पिटिटर आते हैं, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, कस्टमर इधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी इधर, गवर्नमेंट का रूल चेंज हो जाता है, ओके, लीगल पार्टी चेंज हो जाता है, जिसका हम बोलते हैं अपना जो एनवायरमेंट है वो चेंज होता है, कभी क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो यू मस्ट हैव ऑल नॉलेज अबाउट कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, उसके रिगार्डिंग आपको अच्छा डिसीजन लेना है कि मैं आगे अगर ये हो जाएगा तो मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा, आगे अगर मुझे इतना बड़ा लॉस हो गया तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। जिससे कि हम क्या करते हैं, बैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्रेडिट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सब किसके लिए, बिकॉज ऑफ फॉरसाइट, क्योंकि हमें पता है कि कभी ना कभी प्रॉब्लम होगा, तो वो प्रॉब्लम में यही लोग हमें सपोर्ट करेंगे, यही लोग हमें हेल्प करेंगे। ठीक है कि नहीं। आपके बिजनेस भी अगर देखोगे तो बिजनेस में हम लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदते हैं, लायबिलिटी मतलब हम लोन लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि हमें पता है फॉरसाइट, कि हमें पता है डेफिनेटली फ्यूचर में हम उसको सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं। फ्यूचर में हम सॉल्व करने के बाद हमारा पोजीशन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड फॉरसाइट। फॉरसाइट मतलब क्लियर, फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर ओरिएंटेड। आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। बाय डूइंग समथिंग इन प्रेजेंट यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट फ्यूचर, कि अगर मैं ये आज करूंगा तो फ्यूचर में उसका इंपैक्ट मुझे क्या मिलेगा, कितना पॉजिटिव रहेगा, कितना नेगेटिव रहेगा। क्लियर। एंड कमिटेड, कमिटेड मतलब आप देखो, जब आपने बिजनेस शुरू किया था, आपने बिजनेस को क्या बोला था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपका मतलब बिजनेस का जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है मैं फुलफिल करूंगा, जितने भी ऑल ऑब्जेक्टिव मतलब आगे बढ़ना, बिजनेस को चलाना, प्रॉफिट करना, सारे के सारे मतलब मैं फुलफिल करूंगा। दैट वाज योर प्रॉमिस, सो यू मस्ट बी कमिटेड टुवर्ड्स योर प्रॉमिस। कमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे प्रॉमिस कि हाँ मैं कल कर दूंगा, कल आएगा अरे भूल गया, कल कर दूंगा। ठीक है, आप सोचो कि एक दोस्त आपको मतलब एक फ्रेंड और नहीं तो कोई एक काम दे रहा है, आप बोलोगे हाँ सर मैं कल कर दूंगा, कल आ गया सर भूल गया सर, और बहाना ढूंढ के ये हो गया वो हो गया ये हो गया वो हो गया। ठीक है, और फिर कल अरे सर मेरा मतलब ये प्रॉब्लम हो गया सर, फैमिली प्रॉब्लम हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गया, पावर का प्रॉब्लम हो गया। ऐसा अगर आप बोलोगे दैट मींस यू आर नॉट कमिटेड। कमिटेड मतलब इफ यू promise for something you must have ability, you must have responsible to fulfill those things. Committed। ठीक है, काम करना है, जो बोला है उसको करके दिखाना है। ऐसा नहीं सिर्फ हवा में बोल दिया हाँ मैं कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा, बट करने के टाइम पे कुछ नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बिजनेस एथिक्स। जैसे मैंने बोला कि बीइंग ए लॉयल, यू मस्ट बीइंग ए लॉयल पर्सन। बिजनेस के ना बहुत सारे एथिक्स होते हैं। एथिक्स मतलब बिजनेस कैसे करना है। जैसे हमने देखा कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स में कि लोगों के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए करना है, इंसानियत के लिए करना है, अच्छा चीज देना है, लो प्राइस चार्ज करना है, चीटिंग नहीं करना है, मैल प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है, मतलब और क्या, एडल्ट्रेशन नहीं करना है, डुप्लीकेसी नहीं करना है, गवर्नमेंट को नहीं ठगना है। दीज आर द वेरियस एथिक्स। यू मस्ट हैव बिजनेस एथिक्स, नॉलेज हो और आप उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इफ यू आर ए क्रिमिनल। ठीक है, यहाँ पे देखो और एक पॉइंट है कि गुड पर्सन, कहाँ पे है, दैट यू मस्ट हैव ए गुड पर्सन। ठीक है, सी गुड पर्सनालिटी, यहाँ पे जो ये दो पॉइंट कि गुड पर्सनालिटी मतलब आप एक अच्छा पर्सन होना चाहिए। अच्छा पर्सन है तो ये सारे चीजों को फॉलो करेगा, अगर बुरा पर्सन है तो फॉलो नहीं करेगा। अगर आप एक क्रिमिनल को बोलोगे कि यू मस्ट फॉलो द बिजनेस एथिक्स, वो थोड़ी ना उसको फॉलो करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में, उसके लाइब्रेरी में, उसके डिक्शनरी में वो सब चीजें नहीं है, क्योंकि वो चीटिंग ही करेगा, दूसरों को हार्म करेगा, दूसरों को हैम्पर करेगा। ठीक है, तो यू मस्ट बीइंग ए गुड पर्सनालिटी एंड यू मस्ट फॉलो द बिजनेस एथिक्स। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग स्किल। ऑर्गेनाइजिंग मतलब जैसे मैंने बोला कि इनिशिएट करना है, टीम बिल्ड करना है। ऑर्गेनाइज मतलब मैंने आपको बोला कि एक पार्टी एक ऑर्गेनाइज करो। व्हाट इट मीन कि पार्टी में क्या होगा, आइटम्स क्या होगा, कब होगा, कहां पे होगा, कौन आएगा कौन नहीं, वो सारी चीजों को सोचना, उसके लिए प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना, दैट इज ऑर्गेनाइज। कि मुझे बिजनेस क्या करना है, क्या एसेट खरीदना है, क्या बिजनेस करना है, रॉ मटेरियल कहां से खरीद के लाना है, ठीक है, और उसको क्या
फिनिश प्रोडक्ट कैसे डिजाइन कैसे होगा, उसका प्राइस कैसे होगा, मैं कहाँ पे बेचूंगा, किसको बेचूंगा, गवर्नमेंट को टैक्स कैसे दूंगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे दूंगा, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में सोचना, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज, ठीक है, और ऑर्गेनाइज करना और फिर उसको एज यूजुअल फॉलो करना। ऑर्गेनाइज, यू फर्स्ट ऑर्गेनाइज, प्लान, ऑर्गेनाइज एंड देन कैन यू कैन एग्जीक्यूट। विदाउट ऑर्गेनाइजिंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग, है कि नहीं। अगर आपके घर में देखोगे कि आपके बुक्स कहाँ पे हैं, बैग कहाँ पे है, आई कार्ड कहाँ पे है, जब आप कॉलेज निकलते हो आप मतलब एवरीथिंग वेल सेट, आप निकल गए। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, ऑर्गेनाइज मतलब जो 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 जब कहाँ पे, मतलब राइट थिंग एट द राइट टाइम, राइट थिंग एट द राइट प्लेस, राइट टाइम राइट प्लेस में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपका टाइम इधर उधर हो जाएगा। यू आर कॉल्ड एज ए अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन, मतलब आप कहाँ पे भी, आप कौन सा चीज कहाँ पे रखते हो आपका नॉलेज नहीं है, आप कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ क्या करना है, कब टाइमिंग का सेंस नहीं है, सो यू आर अनऑर्गेनाइज्ड। अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड रहोगे तो आप एक बिजनेस को हैंडल नहीं कर पाओगे और यू मे फेल इन द बिजनेस। सो यू मस्ट हैव सम ऑर्गेनाइजिंग स्किल। ओके, नेक्स्ट कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव का मतलब क्या है कि आप लोगों के साथ बात कर पाओ, उनको अपना फीलिंग शेयर कर पाओ, उनको मोटिवेट कर पाओ, उनको टीम लीड कर पाओ, उनको बोल पाओ कि मेरे लिए काम करो, मैं आपको ये दूंगा। कस्टमर्स को आपको अप्रोच करना है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, सेलर को व सप्लायर को अप्रोच करना है कि वो आपको क्रेडिट में चीजें बेचे, गवर्नमेंट के साथ अच्छा नेगोशिएट करना है ताकि वो आपके लिए थोड़ा क्लियर, मतलब जो होता है डिफरेंट पॉलिसीज, ठीक है, वो उसमें आपको रिलैक्स दे। सो यू मस्ट बी ए कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आपको, ईच एंड एवरी नॉलेज आना चाहिए। यू मस्ट कैन प्रेजेंट योरसेल्फ टू दी ऑडियंस एंड ऑडियंस की बात को सुनना है, अच्छा से कम्युनिकेट करना है, तभी आप अपने बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। ठीक है, कि सोचो आप अगर अपना नया ब्रांच आंध्र प्रदेश में खोलोगे, एपी में, आंध्र प्रदेश, आपको तेलुगु नहीं आता, आप लोगों के साथ नहीं जानते हो, बात नहीं कर पाओगे, तो बिजनेस क्या खास चलाओगे, नहीं चला पाओगे। सो यहाँ पे क्या हो गया कि आप यू हैव कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, तो होगा तो नहीं चला पाओगे। क्लियर, क्योंकि आपको कब कहाँ क्या आएगा, कौन सा कस्टमर आएगा, कौन सा सेलर के साथ, कौन से मतलब गवर्नमेंट के साथ, कौन से ऑफिशियल के साथ कब डील करना पड़ेगा, कौन से एम्प्लॉय के साथ कब डील करना पड़ेगा, उनको कैसे मोटिवेट करोगे, उनको कैसे इनिशिएटेड करोगे, एवरीथिंग रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल। सो यू मस्ट हैव सम कम्युनिकेशन स्किल। ओके, नेक्स्ट टेक्निकल स्किल। टेक्निकल मतलब टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। स्टूडेंट, टेक्निक मतलब क्या है? टेक्निक मतलब क्या है? टेक्निक का सिंपल मीनिंग होता है कि आप जो फील्ड में हो उसको रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, along with some टेक्नोलॉजी। टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी, ओनली टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, उसके साथ साथ आप जो फील्ड में हो उसको रिलेटेड कुछ नॉलेज हो, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि एक मैकेनिक पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, विदाउट एनी एजुकेशन वो आपके बाइक को खोल देता है, तैयार कर देता है, कैसे? वो थोड़ी ना पढ़ा है। हम थोड़ी ना बोलेंगे इसको तो ये तो नॉलेजेबल, इसको ये तो पढ़ाई नहीं किया, उसका टेक्निकल स्किल कैसा है? स्टूडेंट, टेक्निकल स्किल ऐसा है कि सिर्फ पढ़ाई से नहीं आता है, एक्सपीरियंस आता है, ऑब्जर्व करके आता है, ठीक है। तो टेक्निकल उसको हम बोलते हैं, मतलब वो बाइक तैयार किया ना, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल स्किल, ठीक है। कंप्यूटर वाले कंप्यूटर हैंडल करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर टेक्निकल स्किल। अगर आप बोलोगे किसको, अगर बाइक रिपेयरर को बोलोगे कि कंप्यूटर तैयार करो, वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ दे हैव नो टेक्निकल स्किल। टेक्निकल मतलब आप जो काम कर रहे हो उसके बारे में अगर आपके पास नॉलेज है, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल स्किल, ठीक है। और उसके साथ साथ यू मस्ट हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, अबाउट द सोसाइटी, अबाउट टेक्नोलॉजी, अबाउट द मशीन, ओके, अबाउट न्यू अपग्रेड, अबाउट न्यू ट्रेंड, अबाउट मार्केट, अबाउट एवरीथिंग, इसको हम बोलते हैं टेक्निकल स्किल। क्योंकि अगर टेक्निकली इफ यू आर नॉट साउंड, तो आपको लोग टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू देके ठग लेंगे। जैसे आप देखे होंगे कि जीएसटी के नाम पे कितना ठगा पड़ा है कि नहीं। आप अगर देखो, इफ यू आर नॉट ए साउंड पर्सन, आप अगर दुकान में जाओगे कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, तो वो बोलेगा कि ये प्रोडक्ट कितना है ना, 10 रुपए का, प्रिंटेड है 10 रुपीज, वो बोलेगा कि 12, आप बोलोगे कि 12 क्यों, वो बोलेगा कि जीएसटी लग गया 2 रुपया, आप बोलोगे हाँ सही है, ठीक है, ले लो 12 रुपए ले लो, मतलब 10 रुपए का चीज को आपको 12 रुपए में बेच दिया उन्हें। क्यों? यू हैव नो टेक्निकल स्किल। टेक्निकल मतलब आप जब एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, उसके प्राइसिंग के बारे में यू मस्ट हैव नॉलेज कि वो जो प्राइसिंग कैसे बनता है,
एमआरपी अगर 10 है तो 10 से ज्यादा कोई नहीं ले ही नहीं सकता, बट आपने 12 रुपए देके आगे, बिकॉज यू हैव नो टेक्निकल स्किल। तो अगर टेक्निकल स्किल नहीं होगा तो आपको लोग चीट करेंगे, तो यू मस्ट हैव टेक्निकल स्किल। ओके, देन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिसीजन आप ही को लेना है। डिसीजन मतलब ईच एंड एवरी डिसीजन कि करना क्या है, कब करना है, कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करना है, कहां पे बेचना है, किसको बेचना है, कितने रुपए में बेचना है, अपने बिजनेस को कैसे हम बड़ा करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, कौन से स्टाफ को अपॉइंट करना है, कैसे ग्रो करेंगे, ब्रांच कहां पे ओपन करेंगे, फ्लोर कहां पे खरीदेंगे, कौन सा एसेट खरीदेंगे, कौन से सप्लायर से प्रोडक्ट लाएंगे, गवर्नमेंट को कैसे टैक्स देंगे। दो ऑल आर डिसीजंस, दीज आर ऑल डिसीजन, दैट इज यू आर द लीडर, यू हैव टू टेक द डिसीजन। आप अगर डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपके पास सोचो कि सब है, डिसीजन ले पाओगे तो डिसीजन कौन लेगा आपके लिए? अगर कोई दूसरा डिसीजन लेगा तो वो उसके बेनिफिट के हिसाब से डिसीजन होगा, जहां जो जिससे कि बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो यू मस्ट हैव डिसीजन मेकिंग स्किल, ताकि आप डिसाइड कर पाओ अपने तरीके से, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ताकि वो बिजनेस में सूट कर पाए, आपको बेहतरीन रिजल्ट दे पाए। ठीक है, that is another mean to technical decision making skill. Next, goal oriented. Yes, you must have committed leader, build your team to fulfill your goal. Goal क्या है? जो हमने देखा, जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, जो ऑब्जेक्टिव्स है वही अपना गोल है। अपना गोल, बिजनेस का गोल इज आवर गोल, कि बिजनेस का जो है इकोनॉमिक गोल्स, कि प्रॉफिट पाना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, सस्टेन करना है, ग्रो करना है, डाइवर्सिफाई करना है। देन सोशल, कि एम्प्लॉयमेंट देना है, अच्छा प्रोडक्ट देना है, फेयर प्राइस चार्ज करना है, ठीक है कि नहीं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। नेक्स्ट मतलब ह्यूमन के हिसाब से, कि लोगों को मतलब ट्रेन करना है, डेवलप करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, सोशल स्टेबिलिटी को डेवलप करना है। देन अगर कंट्री के लिए जाएंगे तो टैक्स देना है, पॉवर्टी दूर करना है, सेल्फ रिलायंस बनना है। ये जो सारे ऑब्जेक्टिव आपके हैं, आप इसी के ऊपर चलना है। आप अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव को सेट नहीं कर सकते कि मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी खरीदना है, ये सब आपका है, नो डाउट। आप अगर बिजनेस के लिए करोगे, बिजनेस आपको प्रॉफिट देगा, उसके साथ आप घर बनाओ, प्रॉफिट बनाओ, गाड़ी बनाओ, जो करना है करो, बट यू मस्ट हैव गोल ओरिएंटेड। अगर आप गोल से भटक गए तो गया बिजनेस, क्योंकि बिजनेस इज टोटली डिपेंड अपॉन इट्स गोल, इट टोटली स्टार्ट अपॉन इट्स बिजनेस गोल। अगर गोल ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? गोल मतलब वही एम, ऑब्जेक्टिव, गोल। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबल, बस वही गोल ओरिएंटेड। यहां पे हमने देखा जो क्या कि कौन सा रेस्पॉन्सिबल, यस कमिटेड। कमिटेड में देखा मींस यू मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल। अगर आपने कुछ एक काम को अपने हाथ में लिया है तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना सेंसिबल होना चाहिए, इतना रियलाइजेशन स्किल होना चाहिए कि ये काम मेरा है, मैं ही ये करूंगा। Being responsible. If you are a responsible person, then only you can perform your task, you can take decision, and you can do whatever you have supposed to do. If you can't do, then you are a failure, क्योंकि business इधर से उधर हो जाएगा, and you are called as a failure businessman. ठीक है? Next, good personality हुआ, then business secrecy. Yes, ये एक important चीज है स्टूडेंट्स, कि आपको ना अपने बिजनेस के सीक्रेट्स किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करना है। सीक्रेट मतलब आप रॉ मटेरियल कहां से खरीदते हो, आपका प्रोसेस क्या है, ठीक है, और आपका मतलब जो आपका कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करता है, एग्जैक्टली काम क्या करता है, ठीक है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे ट्रेड सीक्रेट्स हैं। You must have to maintain secret, because if you disclose your secret to the others, then they will cheat upon you, they will start competing you, they will take your advantages, है कि नहीं, क्लियर। तो that must be secret। तो सीक्रेट मतलब सारे के सारे चीजों को तो सीक्रेट नहीं रखना है, जितना डिस्क्लोज करना है, बिकॉज वी हैव पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक को कुछ कुछ बताना है, नो डाउट वी सब कुछ बताएंगे। बट ट्रेड सीक्रेट्स, जैसे कि ट्रेड सीक्रेट मतलब आप क्या डेवलप करते हो, उसका प्रोसेस क्या है, मशीन्स क्या है, मेथड्स क्या है, एबिलिटीज क्या है, नो हाउ क्या है, टेक्निक क्या है, कहां से खरीदते हो, ठीक है, आपका पैकेजिंग का स्टाइल क्या है, ये चीजों को किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, आपका फंड कहां पे रहता है, कहां पे इन्वेस्ट किए हो, ये सारे चीजों को आपको बहुत सीक्रेट मेंटेन करना है। बिकॉज अगर आप सीक्रेट मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आपको दूसरे लोग ठग लेंगे, चीट करेंगे। व्हेन देयर इज ए चीट, आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यू आर आल्सो अनसक्सेसफुल, फेलियर। ओके, सो यू मस्ट हैव टू मेंटेन बिजनेस सीक्रेसी। सीक्रेट मेंटेन करना आता होगा, आना चाहिए। मतलब ऐसे लोग होते हैं ना कि कुछ भी कहीं पे भी
किसको भी बोल देते हैं, फैमिली मैटर बाहर डिस्क्लोज कर लेंगे कि आज हमारे घर पे ये हुआ। ऐसा थोड़ी ना होता है, आपको कुछ कुछ सीक्रेट मेंटेन करना है, अच्छे चीजों को बताओ, बट जो खराब चीजें, जो बुरे चीजें, जो सेंसिटिव, उसको छुपा के रखना है, उसको आपको ही सॉल्व करना है, दूसरे को बोलने से कुछ सॉल्व नहीं करेगा, वो सिर्फ मजा उठाएंगे, तो ये नहीं करना है। तो यू मस्ट मेंटेन बिजनेस सीक्रेसी। नेक्स्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी। भाई इमोशन में नहीं बहना है, स्टेबिलिटी मतलब यू मस्ट मेंटेन। इमोशन में नहीं बहना मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा रूड और ज्यादा इमोशनल। रूड मतलब आप मतलब अच्छे से बात नहीं करोगे, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे, अच्छे से डिसीजन नहीं लोगे, एम्प्लॉय को छोटा है, तू मेरा नौकर है, तू मेरे अंडर काम करता है, ऐसा बोलोगे, तो इसको हम बोलते हैं रूडनेस। रूडनेस से काम नहीं चलेगा, रूडनेस से आपको कोई पसंद नहीं करेगा, ना ही आपको सप्लायर पसंद करेगा, नहीं आपका कस्टमर आपको पसंद करेगा, नहीं आपका एम्प्लॉयज आपको पसंद करेगा, ना गवर्नमेंट, ना कोई भी आपके सोसाइटी में कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। इफ नोबडी likes you, that means you are not a good person. If you are not a good person, you cannot handle your business perfectly. क्योंकि बिजनेस हैंडल करने के लिए ग्रुप चाहिए, टीम चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए, सबका सपोर्ट मिलने से ही आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सो यू मस्ट नॉट हैव रूडनेस, रूडनेस नहीं होना चाहिए। प्लस रूडनेस का मतलब ये भी नहीं कि पूरा इमोशन में बह जाओ, पूरा सॉफ्ट नहीं चलेगा। पूरा सॉफ्ट बनोगे तो सब आपको अनड्यू एडवांटेज लेंगे। एम्प्लॉय बोलेगा कि सर आज मेरा माँ का तबीयत खराब है, मैं नहीं आऊंगा, आप बोलोगे हाँ बेटा ठीक है, गया। आपको जानना है कि सच्चा है कि झूठा है, ठीक है। और बोलेगा कस्टमर बोलेगा कि सर मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे कुछ दे दो, आप बोलोगे हाँ भाई ले लो, फ्री में ले लो। तो ऐसा नहीं चलेगा। इमोशन में पूरा बहना नहीं है, पूरा रूड नहीं होना है। स्टेबिलिटी, जिसके साथ जो टाइम पे जैसा डील करना है वैसा करना है। ऐसा नहीं कि आप हर रोज बाकी में मतलब फ्री में चीजें दो। हाँ कभी कभी आप दे सकते हो, आप देखो कि ये बहुत ही नीडी पर्सन है, यू नो दैट दिस कस्टमर इज ए वेरी नीडी, इसके पास पैसा नहीं है, ये बाद में देगा, ठीक है चल भाई तू ले ले, कोई बात नहीं, फ्री में ले ले, ठीक है, बाद में होने के बाद देना, नहीं तो नहीं, वो आपके लिए बहुत काम करेगा। एम्प्लॉय किसके पास सीरियस प्रॉब्लम है उसको छुट्टी दो। अगर आप ऐसा फालतू में छुट्टी दोगे तो हर कोई लेगा, कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो यू मस्ट हैव इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब इमोशन में नहीं बहना है, ना तो ज्यादा रूड होना है, ना तो ज्यादा सॉफ्ट होना है, स्टेबल रहना है, ठीक है। नेक्स्ट, मोटिवेटर। जो मैंने बोला, यू आर ए लीडर, लीडर के हिसाब से आपको मोटिवेट करना है। कि एम्प्लॉय बोला कि सर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, आप बोलोगे हाँ यू हैव द एबिलिटी, आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके पास पावर है, एनर्जी है, आप कर पाओगे, आप ये किए थे, आप वो किए थे, यू कैन डू, उसको ना एनर्जी आएगा, हाँ मेरे सर बोल रहे हैं कर पाऊंगा, मैं भी कर पाऊंगा, यस चलो करते हैं। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। यू मस्ट हैव ए मोटिवेटर, आप दूसरे को मोटिवेट कर पाओ, ये क्वालिटी होना चाहिए। अगर कोई काम नहीं करा, बोला काम नहीं कर पाओगे, ठीक है बैठ जाओ, गया, वो बैठेगा, बैठे ही रहेगा। कस्टमर बोल रहा है कि नहीं सर मुझे आपसे नहीं लेना है, ये बोले नहीं लेना, ठीक है नहीं लेना। यू मस्ट मोटिवेट। आपको बोला कि सर मेरे से लो, मेरे से लेने से ये फायदा है, ठीक है। अगर आपको सप्लायर बोल रहा है कि सर मैं आपको क्रेडिट नहीं दूंगा, आप बोले नहीं दोगे, ठीक है मत दो, तो क्या होगा, वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, आपको क्या कि सर मुझे दो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, आपको ज्यादा प्रॉफिट दूंगा, बहुत बेनिफिट दूंगा, आपको ये करूंगा वो करूंगा, तो वो मोटिवेट हो जाएगा, हाँ ठीक है ले लो, चलो यूज करो, ठीक है कि नहीं। सो यू मस्ट बी ए मोटिवेटर so that everybody have trust upon you and you are called as a independent person and you are called as a strong personality, ताही आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे और आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, गुडविल। यू मस्ट हैव ए गुड नेम एंड फेम, सोसाइटी में आपका एक अच्छा नाम हो। अगर आप एक क्रिमिनल पर्सन को बोलोगे आप बिजनेस हैंडल करो, उसके पास कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं खरीदा, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर इसके पास जाएंगे तो ये चीजें नहीं देगा, हमसे पैसा ले लेगा, अनड्यू अनबैंडेज करके पैसा लेगा, हमें परेशान करेगा, ठीक है। बट अगर अच्छा आदमी है तो आप लोग हाँ ये अच्छा आदमी है, इसके साथ काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। सो यू मस्ट हैव गुड नेम एंड फेम, जिसको हम बोलते हैं गुडविल। गुडविल मतलब अच्छा नाम, सोसाइटी में आपका एक अच्छा नाम हो। अच्छा का मतलब बेस्ट ना हो बट गुड, नॉट बैड। गुड मतलब, गुडविल मतलब यू मस्ट हैव सम नेम एंड फेम, नॉट कि आपको अच्छा बुरा भी ना हो, अच्छा ना हो बुरा ना हो। यू मस्ट हैव ए न्यूट्रल पर्सन, आपको लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ योर गुड थिंग्स, बिकॉज ऑफ गुड एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड, बिकॉज ऑफ एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, बिकॉज ऑफ योर एवरीथिंग।
but you are not engaged in any wrong activity. So that if you are engaged in any wrong activity, if you have bad, गुड के बदले में अगर बैड नेम एंड फेम है तो आपके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा, आप टीम बिल्ड नहीं कर पाओगे, आप बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि बिजनेस को करने के लिए आपको जगह चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, और नहीं तो सप्लायर चाहिए, कस्टमर चाहिए, ये सब आपको नहीं मिलेगा, तो आगे कैसे बढ़ेगा बिजनेस? You, if you are a good person, then everybody have trust upon you, आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आप बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे. ओके, क्लियर? एंड बाकी जो है कॉरेज एंड एम्पैथेटिक. एम्पैथेटिक मतलब आपको बाय सम टाइम, एम्पैथेटिक मतलब इमोशनली भी डिसीजन लेना है कि लॉजिकल डिसीजन क्या है, क्या हम अच्छा है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, उसके हिसाब से काम करना है. हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है कि प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, नहीं. कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर गुडनेस, वेलनेस, सोशल डेवलपमेंट. एम्पैथेटिक मतलब इमोशनल, थोड़ा इमोशनल होना भी है, जो मैंने बोला कि स्मूथनेस, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी स्मूथनेस दिखाना चाहिए. और करेज, साहस. प्रबल मतलब प्रबल साहस होना चाहिए, एज लाइक भीम. प्रबल कॉरेज मतलब आपके पास दम हो या ना हो, इंटरनली एक्सटर्नली, आप इंटरनल भी दम हो, एक्सटर्नल भी दम हो, मतलब स्ट्रॉन्ग एबिलिटी हो, साहस हो, स्ट्रेंथ हो कि मैं कर लूंगा, आई कैन डू, दैट इज रिक्वायर्ड. कॉरेज, क्योंकि कॉरेज इज द थिंग, कॉरेज इज सच ए थिंग, इफ यू हैव करेज, देन अगर आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी नहीं है तो भी आप वो काम कर लोगे, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है तो भी आप वो काम कर दोगे, इफ यू हैव करेज. बट अगर आप देखोगे कि पूरा स्ट्रेंथफुल है, 7 फीट का है, उसका अच्छा अच्छा बाइसेप्स है, अच्छा पूरा हेल्दी है, ठीक है, बट कॉरेज नहीं. आप बोलो, आप उसको बोलेगे चलो 50 किलो उठा के दिखा, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा. कॉरेज नहीं है, वो नहीं कर पाएगा. बट एक दुबला पतला सा आदमी है, उसको, उसके पास कॉरेज, मैं कर लूंगा, मैं उठा लूंगा, आप बोलोगे ना, वो तो उठा लेगा, सच्ची में उठा लेगा, क्योंकि कॉरेज एक ऐसा चीज है कि नहीं. आप लोग देखे होंगे एनिमल्स फाइट में, जो एक मतलब बड़े से बड़े एनिमल को छोटा छोटा एनिमल कभी कभी हरा देता है. हाउ? बिकॉज ऑफ कॉरेज. उसके पास कॉरेज कि मैं हरा सकता हूं, वो हरा देता है. ठीक है, क्लियर? सो यू मस्ट हैव कॉरेज. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे के सारे क्वालिटी समझ में आ गया. ये सारे के सारे क्वालिटी बिजनेसमैन में होना चाहिए फॉर बीइंग ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन. और ये सारे क्वालिटी आप भी अपने आप में डेवलप करो ताकि आप भी अपने करियर में आगे बढ़ पाओ. क्योंकि व्हाट इज माय बिजनेस, हम बोलते हैं ना कभी कभी, स्टिक टू माइंड योर ओन बिजनेस. आप ये सुने होगे, आप ये लाइन सुने होगे, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस. ठीक है ना, ये लाइन आप सुने होगे, मतलब हर किसी के मतलब मुंह से कि माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपना काम से काम रखो. इसका मतलब क्या है? अपना काम से काम रखो. आपका जो काम है वही काम में ध्यान दो, दूसरे कोई काम में ध्यान मत दो. दैट इज माइंड योर ओन बिजनेस. सो आपका काम क्या है स्टूडेंट्स? यू आर नाउ स्टूडेंट्स. आपको ग्रो करना है, अच्छा आदमी बनना है, अच्छा प्रोफेशनल बनना है, अच्छा एम्प्लॉयड बनना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, बिजनेसमैन बनना है और बड़ा आदमी बनना है. तो यू आर ए बिजनेसमैन. सक्सेसफुल बनने के लिए ये क्वालिटीज डेफिनेटली आप में भी होना चाहिए. ओके, क्लियर? सो आई होप and I am sure that I able to clear you the thing about the qualities of a businessman. Okay, so अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो बात सही है. It is a very good thing for me because आपको अगर समझ में आएगा. If you are not able to understand, अगर आप पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट में अगर कुछ भी डाउट है तो definitely you are welcome to ask your doubt in the comment section so that I can clear your doubt anytime, anywhere. Okay, clear? So thank you for today's session. Today we have completed the qualities of businessman. In the next session we are going to discuss the other topics of business. Okay, so till then stay safe, stay healthy, goodbye.